Good morning, everyone. Today we will start the chapter of partnership. Okay, so what is partnership? You must have studied in class 11th also. What is partnership? Sir, when the business is carried by two or more partners. Yes, when a business is carried on by two or more persons jointly, it is called a partnership. As per the Partnership Act 1932, Section 4, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business. And when we say profits of a business, it means they will have to bear the losses also. Profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Now let us understand what this means. It is a relationship between persons who have agreed to share the profits or losses of a business. Which business? The business which is being carried on by them. Suppose there are 5 partners. All 5 may be actively involved in doing the business, or maybe one of them is not so active in running the business. The other 4 are running the business. Maybe 2 of them are running the business on behalf of all 5. So all possibilities are there. There may be just one partner operating the business for all 5 on behalf of all 5. That is also possible, right? But whatever profits or losses will be there, they will be shared by all. Clear? Yes, sir. Now let's come to features of partnership or characteristics of partnership. So features of characteristics of partnership. First feature is business is carried on by 2 or more persons, because one person cannot कैरी ऑन अ पार्टनरशिप बिजनेस, वो तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा. तो मिनिमम 2 लोग तो चाहिए पार्टनरशिप के लिए. सो 2 और मोर पर्सन. देन सेकेंड फीचर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. हाउ मिनिमम तो 2 हो गए, हमें पता है मिनिमम 2 हो सकते हैं. मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में? ये पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन नहीं है कि कितने मैक्सिमम हो सकते हैं. इंटरेस्टिंगली किसमें मेंशन्ड है? कंपनीज एक्ट में. The Companies Act empowers the central government to prescribe maximum number of partners. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 100. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी 100 से ज्यादा अलाउ नहीं कर सकती. ठीक है. नाउ इन रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स, द गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब मैक्सिमम 50 मेंबर्स. कंपनीज एक्ट ने कह दिया. अब एक बार फिर से पूरी क्रोनोलॉजी समझते हैं इसकी. पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट जितने मर्जी हो जाएं. लेकिन द कंपनीज एक्ट स्पेसिफाइज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट will prescribe how many maximum number of partners can be there, but it says even the central government cannot increase the number beyond 100. Then comes the ball comes in the court of central government. Now central government as of now, it has allowed maximum 50 members in a partnership. So there can be maximum 50 partners in any partnership, not more than that. 50 से अब ये कंपनीज एक्ट में क्यों मेंशन्ड है? क्योंकि अगर 50 से ज्यादा होंगे then they will have to form a company. They cannot carry on their business as a partnership. Right. So as of now, minimum number of partners can be 2, maximum can be 50. Clear? Then the third feature, there is a written agreement or oral agreement. अगर partners के बीच में
जब भी एक से ज्यादा लोग कुछ मिलकर काम करते हैं तो उनके बीच में कुछ चीजों को लेकर एग्रीमेंट होना जरूरी है, ताकि बाद में कुछ डिस्प्यूट्स ना हो, कन्फ्लिक्ट्स ना हो। ठीक है, सो अगर वो एग्रीमेंट राइटिंग में है, then that written agreement is called partnership deed. Otherwise, it can be an oral agreement also between the partners. Now, इस agreement में generally क्या-क्या चीजें होती हैं? Name of the firm, place, nature, other details of business, mutual terms and conditions means how much will be the profit share of each partner, how much capital will be invested by each partner, and other such mutual terms and conditions. It is better to have a detailed partnership deed to avoid any disputes, confusions, misunderstandings between the partners. जितनी डिटेल में ये एग्रीमेंट प्रिपेयर होगा, जितनी भी चीजें आप सोच सकते हो कि इसमें कोई कंफ्यूजन हो सकती है या कंफ्लिक्ट हो सकती है, उन सब चीजों को पहले ही एक एग्रीमेंट की फॉर्म में अगर पार्टनर्स तैयार कर लें और सब उस पर साइन कर दें, एग्री हो जाएं, तो फ्यूचर में होने वाले बहुत से डिस्प्यूट्स, कन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कंफ्यूजन्स अवॉइड हो सकते हैं. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव एन एग्रीमेंट, a detailed agreement, and preferably in writing with signatures of all the partners. Now, next feature is partnership must be for a lawful business. अगर 2-3 लोग मिलकर ये सोचें कि चलो हम चोरी करते हैं, that is not a partnership business because it is an illegal activity. So partnership can be for legal business only, for a lawful business activity only. There is an agreement between the partners to share profits or losses of the business. ये क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए कि सब पार्टनर्स किस किस प्रोपोर्शन में बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे या उसके लॉसेस को बियर करेंगे. Business is carried on by all the partners or any of them acting for all. As I just said a few minutes back, that all the partners may be carrying on business, all of them may be active partners, or one of them or some of them may be carrying on business on behalf of all of them. As a principle, a partner is bound by the act of all partners, and as an agent, he/she represents all partners in business dealings and thereby binds all of them by his or acts. ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि दूसरे पार्टनर्स जो भी एग्रीमेंट्स कर रहे हैं आउटसाइडर्स के साथ या जो भी बिजनेस डीलिंग्स कर रहे हैं, एज अ प्रिंसिपल एवरी पार्टनर इज बाउंड बाय देम. तो अगर आप सपोज आप 2 पार्टनर्स हो, आपके पार्टनर ने कोई लोन लिया फर्म के नाम पे बैंक से, तो आप भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो उस लोन के लिए, बीइंग अ पार्टनर, बेशक आप उस डीलिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे. एज एन एजेंट, आप जो भी बिजनेस डीलिंग्स कर रहे हो, जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, बाकी के पार्टनर्स पर भी वो सारी ट्रांजैक्शंस, वो सारी कमिटमेंट्स बाइंडिंग है. इसीलिए हम कहते हैं एनी ऑफ देम और ऑल ऑफ देम मे बी कैरिंग ऑन द बिजनेस. कोई भी पार्टनर अगर कोई भी बिजनेस डिसीजन लेता है, कोई बिजनेस एग्रीमेंट करता है किसी आउटसाइड एजेंसी के साथ, दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स. Clear? Then in the absence of partnership deed, suppose कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में, रिटन एग्रीमेंट नहीं है, या फिर एग्रीमेंट तो है, पार्टनरशिप डीड तो है, लेकिन कुछ चीजों के बारे में उस पार्टनरशिप डीड में या उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ मेंशन नहीं है. इन सच अ केस पार्टनरशिप एक्ट में कुछ प्रोविजंस दी गई हैं जो अप्लाई होंगी. क्या क्या है ये आपको याद होनी चाहिए सारी. ठीक है, फर्स्ट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. इफ द पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड
in which ratio will they share the profits or losses, किसको कितना proportion मिलेगा profit या loss का. अगर agreement है उनका already इस बारे में, then they will share the profits or losses in that proportion in which they have agreed. But if there is no such agreement or no such mention in the agreement, then they will share profits or losses equally. दो पार्टनर हैं तो 50-50, तीन पार्टनर है तो 1/3, 1/3, चार पार्टनर है तो 1/4 each and so on. चाहे किसी ने कितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट की हो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एक पार्टनर ने 50 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, दूसरे ने सिर्फ 20 लाख रुपए इन्वेस्ट की हुई है. प्रॉफिट्स किस रेशियो में शेयर करेंगे ये उन्होंने पहले से एग्रीमेंट में नहीं लिखा, डिसाइड नहीं किया. देन एज पर द पार्टनरशिप एक्ट जो भी प्रॉफिट होगा वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. बेशक एक की कैपिटल ज्यादा है दूसरे की कम है, डजंट मैटर, किसी की कितनी भी कैपिटल हो, profits or losses will be shared equally if there is no agreement regarding sharing of profits or losses among the partners. Second is interest on capital. अगर interest on capital के बारे में कोई agreement नहीं है partners के बीच में, then no interest on capital will be provided. Then interest on drawings. Again, if there is no agreement among the partners about interest on drawings, no interest on drawings will be charged from them. Salary or remuneration to any partner. If no agreement, no salary or remuneration. तो तीन चीजें तो बड़ी सिंपल नो 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 हो गई. Interest on capital, interest on drawings, salary or remuneration to partner. अगर इन तीन के बारे में ऑलरेडी कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में, these three are not to be provided or charged. Profit losses डिस्कस कर लिया हमने इक्वली. अब आगे बढ़ते हैं. If some partner has given a loan to the firm, then at और उस पर इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं हुआ, एग्री नहीं हुआ कि किस रेट पर उसे इंटरेस्ट पे करना है फर्म ने, then interest will be paid to the partner at 6% per annum. So interest on partner's loan will be paid at 6% per annum if there is no agreement about interest on partner's loan among the partners. I am repeating, अगर agreement है already तो फिर जो agreement है उस हिसाब से चलेगा. Agreement नहीं है तब ये provisions आएंगी. Admission of a new partner. अगर suppose तीन लोग already partnership business चला रहे हैं, now a fourth one wants to join the business. A new partner can be admitted to the partnership only and only if all the existing partners agree, not otherwise. If even one existing partner has an objection to the joining of a new partner, then the new partner cannot join the business, cannot be admitted into the business. Any profit earned by a partner through a business transaction or by using firm's assets belongs to the firm. किसी भी पार्टनर ने फर्म के एसेट्स को यूज करके या फर्म की बिजनेस ट्रांजैक्शन के थ्रू कुछ भी प्रॉफिट कमाया तो वो प्रॉफिट फर्म को बिलोंग करता है, उस पार्टनर को नहीं. ठीक है. सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स, वन ऑफ देम uses one of the room in the building of the firm and he lets out that room to someone, तो उस पे जो रेंट आएगा वो रेंट फर्म की इनकम होगी, उस पार्टनर की नहीं, क्योंकि बिल्डिंग फर्म की है. If a partner carries on another business in competition of the firm, the profit of that business also belongs to the firm. Okay, so if any partner carries on another business which is in competition of the firm, suppose partnership firm is running a garment showroom and one of the partner starts another showroom of garments separately, then and in the same area, then that business is clearly in competition with the existing firm. The act says if there is no such agreement regarding it,
then the profit of that business also belongs to this firm only, the main firm only, right? So these are the provisions of Partnership Act in case the partnership deed is not there or there is no mention about any of these in the partnership deed. Now, some other important provisions of the partnership deed, of the Partnership Act, sorry. Yes, Arshit. If the competition firm incurs loss, then sir, it will be incurred by the main firm only. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है अर्शित, रिपीट Sir, करो. if the competition firm partner incurs loss, then sir, then who will be a नहीं, loss of that firm? तब वो लॉस उस पार्टनर का ही होगा जो कॉम्पीटिंग फर्म चला रहा था, तो वो लॉस वही बियर करेगा. लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ कंपीटिंग फर्म का तो वो इस फर्म को बिलोंग करेगा जो पहले से चल रही थी. ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. Now, some other important provisions of the Partnership Act in the absence of partnership deed or absence of their mention in the partnership deed. Section 30. It states, if all the partners agree, a minor may be admitted for the benefit of partnership. A minor means someone who is below the age of 18 years cannot become a partner in a partnership. ठीक है? क्योंकि जो माइनर है वो लीगली कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता, लीगली कोई डीलिंग्स नहीं कर सकता अपने बिहाफ पे. तो इसलिए अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, बट अ माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप. मतलब प्रॉफिट में उसका शेयर हो सकता है, अदरवाइज वो एक फुल फ्लेज्ड पार्टनर नहीं हो सकता. लेकिन बेनिफिट में भी कब वो बेनिफिट भी कब ले सकता है पार्टनरशिप का, यानी प्रॉफिट्स में भी शेयर कब ले सकता है? Only when all the partners agree. Clear? Yes, sir. Then section 31. A person may be admitted as a partner either with consent of all existing partners or in accordance with an agreement among the partners. ठीक है? कोई भी नया पार्टनर तभी एडमिट हो सकता है जब सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री करें, not otherwise. Then section 32. A partner may retire from the firm either with the consent of all the partners or in accordance with an agreement among the partners. कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर, अगर सपोज 3 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक फर्म को छोड़ना चाहता है, रिटायर होना चाहता है, वो भी तभी हो सकता है जब सारे पार्टनर्स एग्री करें या फिर पहले से कोई रिटर्न एग्रीमेंट हो इसके बारे में. ठीक है? ऑल्दो ये चीज प्रैक्टिकली मुझे गलत लगती है, बिकॉज इफ समवन वांट्स टू लीव अ फर्म देन दैट पर्सन शुड बी अलाउड टू लीव. उसमें बाकियों की कंसेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जबरदस्ती अगर उसे रोका, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो कोई जॉब है, कई कंपनीज भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं एम्प्लॉइज पे कि आप अगर इतने पीरियड के अंदर अंदर जॉब छोड़ के चले गए तो आपको इतना रुपीस फाइन भरना पड़ेगा कंपनी को, विच इज रॉन्ग, विच सीम्स रॉन्ग, कि आप किसी को जबरदस्ती. और सिमिलरली रिलेशनशिप्स में भी, फ्रेंडशिप्स में भी, कई बार कोई फ्रेंड अगर आपसे फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता है एनी मोर या नहीं चाहती, तो व्हाई टू फोर्स दैट रिलेशनशिप अपॉन दैट पर्सन. कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, any relationship should not be forced upon anyone. It should be on mutual consent. As long as 2 or more persons mutually agree to be in such a relationship, they should continue. If they don't, then they should move on. They should be let to move on. क्योंकि जबरदस्ती आप किसी को भी, पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, पार्टनरशिप में अगर हम जबरदस्ती किसी पार्टनर को कहें कि नहीं तुम नहीं छोड़ सकते पार्टनरशिप, यू विल हैव टू कंटिन्यू इन बिजनेस विद अस, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली फिर मन से काम तो नहीं करेगा, और जब मन से काम नहीं करेगा तो बिजनेस को उसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा.
एंड दिस अप्लाइज इन ऑल सिचुएशंस। कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को जबरदस्ती कहती है आप जॉब नहीं छोड़ सकते, तो वो एम्प्लॉय हो सकता है किसी कंपल्शन में कंटिन्यू कर ले काम करना, लेकिन वो मन से काम नहीं करेगा, और मन से नहीं करेगा तो अगेन द कंपनी में हैव टू बियर सम लॉसेस बिकॉज ऑफ अनविलिंग वर्क ऑफ दैट पर्सन। एंड सेम थिंग अप्लाइज इन फ्रेंडशिप ऑल्सो। अगर किसी को आप जबरदस्ती अपने साथ फ्रेंडशिप में नहीं रख सकते, अगर कोशिश करोगे तो उसका नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। ठीक है, एनीवेज दिस इज द प्रोविजन। देन सेक्शन 35, unless otherwise agreed in the partnership deed, a firm is dissolved on the death of a partner। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ एग्रीमेंट है इसके बारे में कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो क्या होगा, तो वो एग्रीमेंट के हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो फर्म किसी भी एक पार्टनर की डेथ होने पर डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है। सेक्शन 69, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है, चाहे तो रजिस्टर करवा लें चाहे तो ना करवाएं। ठीक है, यहां तक क्लियर? यस सर। द नेट, अब हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है वो कहां पर जाता है? कैपिटल में, क्योंकि सिंगल सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग हमने पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनता है विच इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाट इज इट कॉल्ड? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होता है दैट गेट्स ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो कैपिटल में सीधा नहीं जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ऐसे ही नेट प्रॉफिट या नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उस प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। किसी पार्टनर को अगर सैलरी मिलनी है, रेम्यूनरेशन मिलनी है, कोई कमीशन मिलना है, दैट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। If any amount of profit is to be transferred to any reserve, that will also be done through profit and loss appropriation account. And finally, whatever amount of profit will be left after doing all this, that will be distributed among the partners in their profit sharing ratio. Suppose there are two partners sharing profits equally, तो बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट दोनों में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही होता है। हेडिंग आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ, उसके आगे फर्म का नेम, फॉर द ईयर एंडेड, आगे ईयर एंडिंग वाली डेट आ जाएगी, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर नेट प्रॉफिट था तो इसमें क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होगा बाय नेट प्रॉफिट। एंड इफ देयर वाज अ नेट लॉस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट लॉस में वो क्रेडिट साइड पे रहा होगा नेट लॉस, इसमें डेबिट साइड पे आ जाएगा टू नेट लॉस। दोनों में से कोई एक चीज ही होगी ऑब्वियसली, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में से। ठीक है, फिर क्रेडिट साइड पर एक एप्रोप्रिएशन आ सकती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम या गेन हो जाएगा, तो दैट कैन कम ऑन क्रेडिट साइड। बाकी जितनी भी एप्रोप्रिएशन है वो आएंगी डेबिट साइड पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर्स सैलरीज, टू पार्टनर्स कमीशन, टू रिजर्व,
और ये सब अप्रोप्रिएशंस करने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. द प्रॉफिट विच इज लेफ्ट आफ्टर मेकिंग ऑल द अप्रोप्रिएशंस फ्रॉम नेट प्रॉफिट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फिर पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल्स, और जितना जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंगली अमाउंट्स उनकी कैपिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सपोज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया 60,000, ठीक है, एंड देयर आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. 3:2:1 मतलब 3:1 का टोटल करो. 3 + 2 5 + 1 6, मतलब 3/6, 2/6, 1/6. तो 30,000 एक को मिल जाएगा, 20,000 एक को मिल जाएगा, 10,000 एक को मिल जाएगा. सिमिलरली अगर लॉस हुआ तो फिर वो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल्स. अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर आया टू पार्टनर्स कैपिटल्स, तो कैपिटल्स में किस साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अगर लॉस हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय पार्टनर्स कैपिटल्स, एंड इन पार्टनर्स कैपिटल्स इट विल कम ऑन डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इन केस ऑफ नेट लॉस, ये लिख लो, बहुत ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट बना के ये लिख लो डिटेल्स. और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिखो, इन केस ऑफ नेट लॉस ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैन बी ट्रीटेड, नो अदर एप्रोप्रिएशन इज डन. क्योंकि अगर नेट लॉस है, प्रॉफिट है ही नहीं, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहां से देंगे, सैलरीज भी पार्टनर को कहां से देंगे, कमीशन भी कैसे देंगे, रिजर्व में भी कैसे ट्रांसफर होगा? नहीं होगा इनमें से कुछ भी. सिर्फ एक एप्रोप्रिएशन हो सकती है अगर नेट लॉस था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ, वो कौन सी हो सकती है? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि इससे लॉस का अमाउंट कम ही होना है, क्योंकि ये फर्म की इनकम है, फर्म के लिए गेन है. यहां तक क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर जितनी भी चीजें आती हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ऑल दोज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. क्यों? क्योंकि उनसे प्रॉफिट का अमाउंट कम हो जाता है और वो बियर करने ही करने हैं वो एक्सपेंस और लॉस. लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जितनी भी चीजें आती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, these all are called appropriations of profit, क्योंकि ये होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से. और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को छोड़कर बाकी सब होती तभी है जब प्रॉफिट हो. अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ये सब एप्रोप्रिएशंस नहीं होंगी. ठीक है, सो नेचर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज एनी एक्सपेंस और लॉस. एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कौन से होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अंडर डिफरेंट हेड्स. रिकॉर्डिंग, चार्ज की रिकॉर्डिंग कहां पे होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आते हैं जितने भी चार्जेस हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस हैं. और एप्रोप्रिएशंस कहां पर? इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रायोरिटी, चार्जेस आर डन मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट बिफोर एप्रोप्रिएशंस. उसके बाद जो नेट प्रॉफिट या लॉस निकलता है वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एंड एप्रोप्रिएशंस आर डन आफ्टर दैट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एग्जांपल्स ऑफ चार्जेस: रेंट, इंटरेस्ट, सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, लॉसेस, ये सब चार्जेस हैं. जितनी भी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं डेबिट साइड पर. एंड एप्रोप्रिएशन के एग्जांपल्स: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर सैलरीज, पार्टनर्स कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व. मतलब पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं या रिजर्व से रिलेटेड, वो सब होती हैं एप्रोप्रिएशंस. क्लियर?
एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू अ पार्टनर आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सिमिलरली अगर रेंट पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं पार्टनर के लोन पे, तो इंटरेस्ट पे करना भी फर्म के लिए एक एक्सपेंस है पार्टनर के लोन पे, दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को एंड रेंट पेड टू अ पार्टनर को, राइट। नाउ जर्नल एंट्रीज, अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, प्रोवाइड करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। यहां पर हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये टेबल बना लो और इस तरह से लिखते जाओ साथ साथ। और फिर जब उस इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू, द एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। Then second is interest on drawings. The entry is partners capital account debit to interest on drawings account. And when this interest on drawing is written off, the entry is interest on drawings account debit to profit and loss appropriation account. Then partners salaries or remuneration or commission. The entry is partners salary और remuneration और commission account debit, जो भी दिया हो क्वेश्चन में हमें, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब भी किसी पार्टनर को कोई अमाउंट मिलना है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। जब भी किसी पार्टनर से फर्म ने कुछ लेना है तो उसकी कैपिटल डिक्रीज करेंगे और कैपिटल में डिक्रीज को डेबिट किया जाता है। फिर जब ये सैलरी रेम्यूनरेशन या कमीशन राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और रेम्यूनरेशन और कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट इज फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर हमने कुछ अमाउंट प्रॉफिट का किसी रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस गिवन टू पार्टनर्स। अब जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा सारी एप्रोप्रिएशंस करने के बाद, दैट प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स, तो उसकी क्या एंट्री हो जाएगी, अगर प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर आएगा। ठीक है, द एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट, एंड इन केस ऑफ लॉस द एंट्री विल बी रिवर्स्ड, partners capital account debit to profit and loss appropriation account. We'll stop over here for today. Any doubt, anyone? No? Okay, thank you.